Good afternoon and a very warm welcome to all of you who have joined the Confident group. Okay, now my group members, I would like to tell you one small thing which I feel is important for you all. We very often say, I wanna go, I gonna do it, and I gotta have it, I gotta go, and then uh, it's nice because I like it. Those are not ways of speaking English. Proper English, those are actually, they say that they are informal words, but when I was learning, I was told that they are slang words and they should not be used when you go for an interview, or when you are talking to someone elderly. You are going to say these proper words of going to, not gonna, want to, got to, I got to do it, not I gotta do it. I liked this because it was tasting nice. No, I liked this because it was tasting very nice. So always try to say the whole word instead of just saying it in short forms, because short forms are not very welcomed, as well as they don't sound very good when you go for any formal interviews, as well as when you're talking to elders and all. You must say the whole word, like going to, gone, want to, then got to. Okay, so today's session I'm going to start with nouns. We have to know about nouns. Noun is the name of a person, place, animal or thing. Now नाउन उन चीज़ों के नाम होते हैं जो इंसानों के नाम है, एंड डॉग्स के नाम है, एनिमल्स के नाम है, एंड प्लेसेस के नाम है, और चीज़ों के नाम है. इनको हम नाउन्स कहते हैं. और नाउन्स में भी अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट नाउन्स. ओके, पहले कॉमन नाउन, जैसे बॉयज. बॉयज को हम कहते हैं ही इज अ बॉय. बॉय नाउन जरूर है, पर बॉय आप सबके लिए यूज कर सकते हैं. जैसे शान के लिए, अमित के लिए, रोहन के लिए और सोहित के लिए. तो इसलिए नाउन किसी भी लड़के के लिए यूज कर सकते हैं. बॉय तो नाउन जरूर है, पर ये कॉमन है सबके लिए बॉय, तो इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे गर्ल, गर्ल हो गया, रीटा, सीता, मीता, राधा, सब गर्ल्स हैं, इसलिए गर्ल्स इज कॉमन नाउन. सो वी यूज इट फॉर ऑल द गर्ल्स. सेम वे वी से मैन. मैन कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी जेंटलमैन हो सकता है, जैसे मिस्टर गुप्ता, मिस्टर वर्मा, मिस्टर विनायक, मिस्टर you can say Jain. So these are commonly used, so that is why man, for all these you are using. Mr. Jain is a man, तो man noun जरूर है, but it's a common noun. Is it clear? And now we come to proper noun. मेरा नाम क्या है? तारा. तारा is a proper noun. तारा और किसी का नाम अगर है भी, तो वो तारा विनायक नहीं होगा, वो शायद तारा शर्मा होगी, या तारा सुतारिया है. सो ये अलग हो जाते हैं. तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सो जो स्पेशल नाम होता है आपका, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. देन वी कम टू कलेक्टिव नाउन्स. आई एम गोइंग टू डू कलेक्टिव नाउन्स विद यू टुडे, just to tell you collective nouns, just to tell you where collective nouns can be used and what are collective nouns. Okay, collective nouns is the name of a group of person, place, animal or thing. Okay, now collective nouns के लिए हम इस ग्रुप को, जो हम कलेक्टिव नाउन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है, उसके लिए हम एक ग्रुप मानते हैं उसे. तो इट इज सिंगुलर. जैसे मैं आपको आज बोलती हूं, आप सब क्रिकेट प्लेयर्स हैं. क्रिकेट प्लेयर्स कितने होते हैं एक टीम में? एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, वो हम सबको मालूम है. तो वो 11 प्लेयर्स एक टीम बनाते हैं.
team of अब आप टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम सिंगुलर माना, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. सो टीम इज कलेक्टिव नाउन. टीम इज कलेक्टिव नाउन. व्हाई? बिकॉज हम उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक टीम्स कह के एड्रेस कर रहे हैं. दिस टीम प्लेड वेरी वेल. समझ आई? सो वी से अ टीम ऑफ players. I hope this is clear to you. Okay, now we will take another thing. A bunch of keys. Now, a bunch of keys is एक पूरा bunch, about 7-8 keys आपने एक की चेन में लटकाया हुआ है, उसको हम bunch कहते हैं. bunch सिर्फ keys के लिए नहीं होता. bunch आता है bunch of grapes. grapes के लिए भी हम bunch कहते हैं. grapes के लिए bunch कहते हैं. और हम flowers के लिए भी a bunch of flowers. I gave my mother a bunch of flowers on her birthday. वो भी bunch होगा, वो एक गुच्छा. bunch का मतलब होता है गुच्छा. grapes भी गुच्छा. bunch of bananas, वो 12 बनानास इकट्ठे लटक रहे होते हैं एक ही जगह से, तो उसको भी हम bunch कहते हैं. तो bunch यूज होता है keys, grapes, flowers, bananas. bananas. Okay, so bunch is used for different things, and you can use it in many different contexts, like in these contexts only especially. Okay, now कई बार हम जब बाजार जाते हैं हम एक झुंड देखते हैं लोगों का, उसको हम कहते हैं क्राउड. क्राउड ऑफ पीपल, उस झुंड को हम कहते हैं क्राउड. यहाँ पे ये भीड़ किस लिए लगी हुई है? सो वो भीड़ जो लोगों की होती है उसको हम बोलते हैं क्राउड. ओके, नाउ ऐसे ही हमने हमारे वी हैव कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स ऑल्सो. डिफरेंट एनिमल्स के लिए हम डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स यूज करते हैं. जैसे a flock of sheep and birds. birds के लिए भी flock यूज करते हैं, sheep के लिए भी हम flock यूज करते हैं. ओके, सेम वे just 1 minute. A litter of puppies. A litter of puppies, we say. Same way, a gang of thieves. A gang of thieves. 5-6 चोर अगर इकट्ठे होते हैं, thieves इकट्ठे होते हैं, उनको हम कहते हैं gang of thieves. Okay? ट्रीज के लिए कहते हैं क्लस्टर. अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज. अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज. एंड स्टार्स के लिए क्या कहते हैं? आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. A galaxy of stars. Okay, now we can also use heap for sand. आपने देखा होगा रेत कई बार बाहर पड़े होते हैं ऐसे ढेर सारे इकट्ठे हुए. ऐसे ही वो छोटे छोटे स्टोन्स, बद्री जिसे कहते हैं, वो पड़े होते हैं, उनको हीप कहते हैं. हीप ऑफ सैंड. Heap of stones also and sand also. You can use it for both. A heap of stones, a heap of sand. Okay, and a shoal of fish.
these are some common collective nouns that we use whenever we are talking. There are a litter of puppies on the road that way. Cattle के लिए कहते हैं a herd of cattle. कैटल क्या है? कैटल है ये गाय भैंस वगैरह जब इकट्ठे होके चल रहे होते हैं उनको हम कहते हैं हर्ड. वो उस झुंड को हम कहते हैं हर्ड. ऐसे ही ये जो फ्लॉक ऑफ शीप आपने देखा होगा, शीप भी एक पूरे झुंड बन के चल रहे होते हैं. आसमान में कई बार हम ऊपर देखते हैं कि बर्ड्स इकट्ठे होके उड़ रहे होते हैं, उनको भी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं. So I have given you a number of them and I hope crew of sailors कहते हैं. Crew of sailors. Now I have given you a number of them. अब ये तो आपको अपने आप याद नहीं हो जाएगा, बट आपने इनको याद करना पड़ेगा. अब आपने देखा है कई बार हम कहीं कोई शो देखने जाते हैं जिसमें लोग इकट्ठे होके गाना गा रहे होते हैं और एक ग्रुप होता है वो, तो उस ग्रुप जो इकट्ठे होके गाना गाते हैं उनको हम कॉयर कहते हैं, कॉयर ऑफ सिंगर्स. सिंस द वर्ड इज वेरी रेयरली यूज्ड, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू नो. Choir of singers. Okay, choir. This is not choir. This is choir. Spelling is CHOIR, but it is actually choir of singers. Okay. Besides collective nouns, I told you there is another noun called abstract noun. Nouns which cannot be felt, जिसको आप छू नहीं सकते, वो feelings जो होते हैं उनको हम abstract noun कहते हैं. जो emotions, feelings and things that cannot be held in the hand, they are called abstract nouns. And those are like love, hatred, then generosity. These are called, generosity का मतलब है आपका कोई kind gesture जो आप out of kindness किसी के लिए करते हो, उसको generosity कहते हैं. जैसे किसी को आप कोई गरीब इंसान हो जो नहीं, जिसके पास कपड़े हैं, आप उसको देते हो कपड़े, उसको जेनरोसिटी कहते हैं. उसको आप जेनरस बन रहे हो, आप अपनी चीज उनको दे रहे हो, उसको कहते हैं जेनरोसिटी. सो दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, सो 4 नाउन वी हैव डन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आई हैव नॉट डन इट इन एन elaborated way. I've just told you in short form that they are feelings that we have, and they are called abstract nouns. That's all for today. Thank you and have a nice day.